lecture? Which topic we have covered in the last lecture, students? Jaldi se chalo fast. What we have learned in the last lecture, students? Which control we have? Yes, multi-view and view control. Okay, what is the use of multi-view and view control? मल्टीव्यू को मतलब एक ही पेज में हम दो पेज की जैसा कोडिंग कर सकते हैं. Yes, only two नहीं, जितना भी आपको करना है, ठीक है, 2, 3, 4, 5 जितना भी आपको डिवाइड करना है पेज को, जितने भी सेक्शन में, यू कैन डिवाइड यूजिंग द मल्टी व्यू एंड व्यू कंट्रोल. वेरी गुड. ओके, so we have done some a small program in the last lecture. Okay, so we have completed the reach controls. Okay, we have completed the reach controls in the last lecture. So which are the list reach controls in ASP.NET? Which are the reach controls? बताओ मुझे कौन से रीच कंट्रोल्स हैं? फाइल अपलोड कंट्रोल, कैलेंडर, हाँ बोलो. फाइल अपलोड कंट्रोल और कैलेंडर और ऐड रोटेट और मल्टीव्यू. यस, ओके. फाइल अपलोड कंट्रोल, calendar control, add rotator and multi-view, all are the reach controls. Very good, Shahjad. Okay, file upload control is used to upload the files, okay, from the user's side. If you want to scan, you want to attach some files from the users, so you can use these controls in your web page. Calendar control, okay, you can use the calendar control for date of birth ke liye. If you want to input the date from the user, then you can use the calendar control. Okay, instead of text box or calendar, we have learned a lot of properties of the calendar controls. Okay, add rotator control is used for advertisement. Okay, add rotator control is used for advertisement. If you want to put advertisement in your website, then you can use this add rotator control. Okay, that also we have covered in the last lecture. Yes, how to use add rotator control? कोई मुझे बताएगा how to use, उसको कैसे advertise कैसे set करना है, which files we required for advertisement? कौन बताएगा मुझे? कल किया ना हम लोगों ने. Yes, add rotator control. How to use add rotator control? चलो बताओ, याद है प्रोसीजर किसी को? पहले क्या किया हम लोगों ने? जितना भी याद है, जैसे भी याद है, स्टेप्स के हमने कैसा, हाउ we had shown the advertisement on our web page, कैसे किया था, याद है किसी को? जितना याद है, ऐसे नहीं कि सीक्वेंस में ही आपको जैसे जो भी स्टेप्स याद है, यू कैन शेयर विथ मी. बताओ. यस, कृतिका, पहले क्या किया हम लोगों ने? पहले क्या किया था कल? एड रोटेटर कंट्रोल के लिए व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट? क्या करना है हमको? क्या करना है? We have to take one XML file. Okay, first of all, we have to take XML file. In that XML file, we have to put the images information using the advertisements and add tags. Okay, that we have done in the last lecture. ठीक है, हम लोगों ने last lecture में कल किया. सबसे पहले हमको क्या करना है? We have to take the XML file. How to take XML file? सेम वैसे ही जैसे हम लोग वेब फॉर्म लेते हैं, ठीक है. राइट क्लिक ऑन दी वेब एप्लीकेशन, ऐड न्यू आइटम में जाके ऐड एक्सएमएल फाइल. व्हेन एक्सएमएल फाइल इज एडेड, देन राइट दी image. Okay, image information, advertisement, write the advertisement. So first we have to write advertisement tag, then add tag, then add the image. Okay, then navigate URL if you want to redirect through that image to give that path. Okay, आपको image पे click करके कहाँ पे navigate करना है तो उसका path दे दो. navigate URL में, image URL में image का path, where the image is stored. Alternate text you can set, impression you can set, keyword you can set. Okay, so this is for one image. If you want to add 4 to 5 images in your advertisement, okay, then you can you have to add tag. Okay, for example, if you have to add 5 images in your advertisement, you have to return 5 times add tags. Okay, for different 5 images. Then after
उसके बाद क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, देन टेक द ऐड रोटेटर कंट्रोल इन द वेब फॉर्म, ठीक है, देन सिलेक्ट द ऐड एडवर्टाइजमेंट फाइल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऐड रोटेटर कंट्रोल। क्या करना है, ऐड रोटेटर कंट्रोल का कौन सा प्रॉपर्टी सेट करना है, एडवर्टाइजमेंट फाइल प्रॉपर्टी। ओके, एडवर्टाइजमेंट फाइल प्रॉपर्टी सेट सिलेक्ट करो उसमें, एंड ये जो XML फाइल हमने बनाया था, गिव दैट द नेम ऑफ दैट XML फाइल। ओके, जो XML फाइल का जो भी नेम है वो नेम यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सी एड फाइल, जो भी हम XML फाइल जो भी हमने बनाया था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यू हैव टू सिलेक्ट दैट XML फाइल एंड क्लिक ऑन ओके बटन। ओके, तो क्या हो जाएगा, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अभी रन करके नहीं दिखा रही हूँ, कल हमने रन किया था बिकॉज इट टेक्स टाइम्स। ओके, यू ट्राई एट होम जैसे हमने कल किया था। Okay, the next we have done the multi-view and view control. Okay, this is also reach control. ये भी reach control है। Multi-view and view controls allows you to divide the content of pages into different groups, displaying only one page at a time. Okay, multi-view and view controls allows you to divide the content of page into different groups. Okay, divide the content of page, okay, into different groups, displaying only one group at a time. एक टाइम पे कितना ग्रुप दिखेगा, एक ही ग्रुप। we can divide our page content into different groups, but at a time कितना ग्रुप दिखेगा, one group दिखेगा। you have to use multi-view and view control both simultaneously. Okay, first of all you have to take multi-view control, and inside the multi-view control you have to take view control। जितना भी views आपको, जितना भी views हमको लेना है, उतना व्यूज, जितना भी आपको डिवाइड करना है, जितने भी सेक्शन में आपको डिवाइड करना है, उतना आपको क्या लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक व्यू कंट्रोल। ओके, तो ये एग्जांपल हमने किया था, एंड यू हैव टू सेट एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टी व्यू कंट्रोल। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ बिकॉज कल हमने थोड़ा जल्दी जल्दी में किया था, तो वंस वी हैव रिवाइज दिस देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। वेट, okay, multi-view example.aspx, दिस इज ओनली फॉर योर पेज स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, वेब पेज के स्ट्रक्चर के लिए वन मल्टी व्यू कंट्रोल हमने एक लिया था। ठीक है, आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक फर्स्ट मल्टी व्यू कंट्रोल, एंड वो मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर आपको क्या लेना है, डिफरेंट व्यूज। क्या लेना है, डिफरेंट व्यूज। ओके, ये फर्स्ट व्यू हमने लिया, वो फर्स्ट व्यू में हमने डिजाइनिंग किया। ये सेकंड व्यू लिया, एंड सेकंड व्यू में हमने क्या किया, डिजाइनिंग किया। ठीक है, तो जैसा आपको जितना भी व्यूज लेना है, यू कैन टेक दी डिफरेंट व्यूज। फॉर एग्जाम्पल अभी हम और एक व्यूज ले लेंगे इन दी सेम मल्टी व्यू में। ओके, कोई एब्सेंट था कल तो प्लीज जो वीडियो है कल का उसको रिफर करो। ठीक है, ये दिस इज सेकंड मल्टी व्यू है। एक मिनट, बट आपको मल्टी व्यू जो है ना उसके अंदर ही व्यू कंट्रोल लेना है। ठीक है, अगर आप गलती से भी ये व्यू कंट्रोल जो है, दिस व्यू कंट्रोल अगर आपने आउट ऑफ द मल्टी व्यू ले लिया तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है, इनसाइड द मल्टी व्यू। ओके, मल्टी व्यू के अंदर आपको क्या करना है, व्यूज कंट्रोल लेना है। एक ये व्यू हमने क्रिएट किया था, तो यूजर को पहले क्या दिखेगा, only these view, enter your name, enter phone number, then जब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेगा तो उसको क्या दिखेगा, दिस व्यू। ठीक है, ये व्यू उसको दिखेगा। ओके, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, व्यूज क्रिएट कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमने थर्ड व्यू में क्रिएट करी। दिस इज, ये जो कंट्रोल है ओनली फॉर योर डिजाइनिंग के लिए है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई क्या बोलते हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो, ठीक है, एट दैट टाइम आपको वो कभी कभी ना पूरा कंटेंट शो नहीं करते, पहले ये चीज करो, फिल योर बेसिक डिटेल्स। वो बेसिक डिटेल फिल करने के बाद मैंने वही क्लिक ऑन दी नेक्स्ट बटन, तो आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिखता है। ठीक है, वो क्वालिफिकेशन डिटेल सबमिट करने के बाद आप बटन पे क्लिक करते हो नेक्स्ट, देन आपको नेक्स्ट पोर्शन दिखता है। ठीक है, तो वैसे आपको डिवाइड करना है आपके पेज को, तो यू कैन यूज दिस मल्टी व्यू एंड व्यू कंट्रोल, जस्ट आपका पेज को अरेंज करने के लिए। ठीक है, और कोई इसका ज्यादा यूज नहीं है। ओके ओके ओके, मैंने व्यू कंट्रोल नहीं लिया ना, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे बटन लेबल ले लिया, तो इट गिव्स द एरर। ठीक है, एरर आ रहा है, मैं भूल गई व्यू कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द व्यू कंट्रोल्स। वेट,
वेट वेट वेट, किसी ने मुझे बोला भी नहीं मैम आपने व्यू कंट्रोल नहीं लिया। यहाँ पे व्यू कंट्रोल पहले लेना है, ठीक है। इन दैट व्यू कंट्रोल में हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो यू कैन फाइंड द व्यू कंट्रोल इन द टूल बॉक्स। ओके, दिस इज द व्यू कंट्रोल, दिस इज थर्ड व्यू, ठीक है। नाउ इन दिस व्यू यू कैन डू द एनी डिजाइनिंग, ठीक है। आप कोई भी डिजाइनिंग इसमें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द लेबल, 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 ओके, ठीक है। ज्यादा हम लोग नहीं ले रहे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ऑलरेडी मैंने ये कल करवाया था, बट एक बार आपको रिवाइज हो जाए इसीलिए आई एम अगेन डूइंग, ठीक है। लेबल 3, यहाँ पे कुछ तो करवा, टाइप कर दो, दिस इज मल्टी व्यू एग्जाम्पल, तो जो भी आपको क्रिएट करवाना है, ठीक है। एग्जाम्पल, क्लिक ऑन, click on button, moving to next view, and we are taking here one button, button का text property I am setting, click here, click here, okay. Now यहाँ पे भी we are taking one more button, okay. And okay, click here, click here और next view, ठीक है, और next view, ओके। तो अभी क्या करना है, जब हम लोग रन करेंगे ना, व्हेन वी विल रन दिस वेब पेज ना, तो सबसे पहले कौन सा दिखेगा, कौन सा व्यू दिखेगा, व्यू 1। व्हाई, सी दिस इज फर्स्ट, हमारा कौन सा है, मल्टी व्यू में हमने वी हैव टेकन 3 व्यूज, हमने अलग अलग व्यूज लिया, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, पेज को डिवाइड कर दिया इन द 3 सेक्शन, व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3। अगर आपको फर्स्ट ये व्यू दिखाना है, ओके, और फर्स्ट व्यू जो होगा उसका क्या होगा, इंडेक्स 0। जैसे एरे में इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, वैसे व्यू का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। इसका इंडेक्स 0 है, व्यू 2 का इंडेक्स 1 है, एंड व्यू 3 का इंडेक्स 2 है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि द फर्स्ट इंडेक्स, सॉरी, द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट व्यू इज ऑलवेज 0, 0 से स्टार्ट होगा। दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। नाउ अभी जब पेज रन होगा तो आपको जो भी व्यू दिखाना उसका इंडेक्स आपको सेट करना है। वेयर, इन मल्टी व्यू का कौन सा प्रॉपर्टी, एक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टी व्यू का एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी यू हैव टू सेट। यहाँ पे मैंने एक्टिव व्यू इंडेक्स क्या किया है, 0 किया। तो व्हेनेवर आई विल रन दिस पेज ना, तो फर्स्ट मुझे कौन सा व्यू दिखेगा, दिस वन, ठीक है, ये वाला व्यू मुझे दिखेगा, ओके। व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस बटन, जब मैं ये बटन पे क्लिक करूंगी, ठीक है, तो मुझे कौन सा व्यू दिखना चाहिए, सेकेंड व्यू शुड बी डिस्प्ले, ओके। तो इन बटन इवेंट में हम लोगों ने कल कोडिंग किया था कि जब बटन पे क्लिक करेगा यूजर, तो मल्टी व्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स, उसका एक्टिव व्यू इंडेक्स क्या हो जाना चाहिए, 1। मतलब कौन सा व्यू दिखना चाहिए, 1। कौन सा व्यू दिखना चाहिए, 1, ओके। 1 मतलब कौन सा, सेकेंड वाला व्यू, ओके। 1 मतलब क्या, सेकेंड वाला व्यू, ठीक है, दिस इज 1, ओके। नाउ व्हेन यूजर इस पे क्लिक करेगा उसको व्यू 2 दिखेगा। व्हेन यूजर विल क्लिक ऑन दिस बटन, ये बटन पे क्लिक करेगा, तो एक्टिव व्यू इंडेक्स क्या हो जाना चाहिए, एक्टिव व्यू इंडेक्स क्या हो जाना चाहिए, स्टूडेंट्स बताओ, टेल मी। व्हेन यूजर विल क्लिक ऑन दिस बटन, तो ये व्यू 3 डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो व्यू 3 डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसका एक्टिव व्यू इंडेक्स क्या होगा, 2। क्या होगा, 2 है, बिकॉज उसका 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, वी विल राइट हियर
Okay, when user click on third button, okay, okay, ये third button first, ओके, थर्ड बटन पे हमको क्या करना है, मल्टी व्यू जो है, जो हमने मल्टी व्यू लिया है, ठीक है, इसका मल्टी व्यू वन डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स, एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, इक्वल्स टू 2, मतलब सेकेंड व्यू दिखना चाहिए। कौन सा व्यू दिखना चाहिए, सेकेंड व्यू दिखना चाहिए। ओके, तो व्हेनेवर यूजर विल क्लिक ऑन दिस बटन ना, तो सेकेंड व्यू मतलब ये वाला व्यू डिस्प्ले होगा। अगेन जब यूजर ये बटन पे क्लिक करेगा तो अगेन कौन सा व्यू दिखना चाहिए, ये फर्स्ट वाला व्यू दिखना चाहिए। तो इसके लिए वी विल राइट, क्या हम लोग लिखेंगे कि व्हेन यूजर विल क्लिक ऑन दिस बटन तो मल्टी व्यू वन डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स कितना हो जाना चाहिए उसका 0, क्योंकि अगेन हमको कौन सा करवाना है, ये करवाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कॉपी कर रही हूँ मैं। ओके, आप कॉपी नहीं करोगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, चलो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी इक्वल्स टू अगेन 0। ओके, अगेन 0 कर दिया मैंने। यस, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स व्हाट आई एम डूइंग, यस और नो, यस और नो एट अ टाइम। ठीक है, सपोज दिस इज योर पेज, ठीक है, हाँ, this is your page at a time. If you want to display only one section to the users, so you can create your page into the section like this। ठीक है, तो पहले यूजर को ये दिखेगा, देन ये वाला सेक्शन, देन दिस वन सेक्शन। ओके, तो ऐसे करने के लिए यू कैन यूज द मल्टी व्यू कंट्रोल। नाउ वी आर रनिंग दिस, लेट्स रन दिस पेज। yes, we have already done with this in the last lecture, but again मैंने आपको एक बार करके दिखा रही हूँ। okay, it will take some time, wait, after that we will go with the post back topic। ठीक है, हमको post back करना है, हम लोग post back देखते हैं। यस, कैलेंडर कंट्रोल प्रैक्टिस करो, एड रोटेटर कंट्रोल प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऑल कंट्रोल्स यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम। अगर प्रैक्टिस नहीं, इफ यू हैव नॉट एनी रिसोर्सेज, तो जस्ट जो वीडियोस है, रिकॉर्डेड वीडियोस है हमारा, ठीक है, वो देखो। ठीक है, सो यू हैव टू गेट आइडिया कि यस व्हिच आर द स्टेप्स हाउ टू यूज द कंट्रोल्स, बिकॉज इट विल बी वेरी यूजफुल इन योर project। okay, when you will start the coding of your project with .NET, अगर कोई .NET पे काम कर रहा है तो ओके, तो इट विल वेरी हेल्प। ये जो चीजें जो है, जो कंट्रोल्स जो है, वो आपको याद रखना है। यू शुड रिमेंबर ऑल दी कंट्रोल्स। ओके, देन एंड ओनली देन यू कैन डू दी वेरी गुड डिजाइनिंग। ठीक है, तो आपका जो, अगर आप वेबसाइट्स वेब एप्लीकेशंस बना रहे हो तो वो अट्रैक्टिव होगा। ये माइनो माइनो जो चीजें हैं, ठीक है, दैट यू कैन डू यूजिंग दिस कंट्रोल्स। ओके, कोई प्रैक्टिस कर रहा है घर पे? स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करे हो ना घर पे? यस और नो? अभी तक किसी ने मुझे डाउट नहीं पूछा है कि मैम कैसे करना है। रन हो रहा है कि नहीं घर पे? यस स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग टू यू, प्रैक्टिस करे हो कि नहीं घर पे? स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक, कर रहे हो? हम्म वेट बेटा, हो रहा है ये। यू कैन डू एनी टाइप ऑफ डिजाइनिंग। ठीक है, आप कोई भी डिजाइनिंग इसमें कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आप इसमें कलरिंग वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह जो भी करना है।
ओके कोई बात नहीं, जिसके पास सिस्टम नहीं है वो लोग जस्ट हम लोग जो करें उसको याद रखो, जो स्टेप्स जो है प्लीज रिमेम्बर द स्टेप्स। ओके, बाकी जिसके पास सिस्टम है वो स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना। Yes, and assignment लिख रहे हो ना, practical also I have told you which practicals you have to write in your practical journal और जो भी आपका बना रहे हो या तो सॉफ्ट कॉपी बना रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इन दी मंडेज लेक्चर में प्रैक्टिकल बताया मैंने आपको क्या क्या प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, हाउ टू राइट प्रैक्टिकल्स, ओके, कैसे लिखना है क्या करना है, दैट आई हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड टू यू। तो प्लीज इसको कंप्लीट करो, ओके, फिर एंड मोमेंट पे ज्यादा हो जाएगा। प्रैक्टिकल्स बताया मैंने प्रैक्टिकल लिस्ट में से, प्लीज स्टार्ट राइटिंग, ओके। नोटबुक में कर रहे हो तो लिखना स्टार्ट करो, अदरवाइज जिसके पास सॉफ्टवेयर है मतलब सॉरी सिस्टम है वो लोग परफॉर्म करके उसका जो कोड कॉपी पेस्ट करो इन वर्ड फाइल में, मेक ओनली वन वर्ड फाइल फॉर ऑल द प्रैक्टिकल्स, ओके। प्रैक्टिकल नंबर 1 उसका एम लिखो, देन ए करके जो भी क्वेश्चन, देन आपका जो कॉपी कोडिंग है वो कॉपी पेस्ट करो, नीचे आउटपुट जो है वो आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेके अटैच द आउटपुट, ओके, दी वर्ड फाइल। तो ऐसा आपको बनाना है फॉर ऑल दी प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल 1, 2 एंड 3 और बताया मैंने आपको करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज वो करो एंड असाइनमेंट क्वेश्चंस, ओके, जो क्वेश्चंस पेन दिया है मैंने वो लिखना स्टार्ट करो। आई विल आस्क इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। यू हैव टू अपलोड इन योर गूगल क्लासरूम, आपको उसको अपलोड करना है, ओके। तो प्लीज बी रेडी बाय नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तक आपको जो असाइनमेंट जो है यूनिट 1 का दैट यू हैव टू सबमिट इट इन गूगल क्लासरूम। आई विल पोस्ट द ड्यू डेट इन गूगल क्लासरूम, ओके। आपको अटैच करो उसको। यस, कंटिन्यू। पेज तो एक ही है, ठीक है, देयर इज वन पेज, बट वो पेज को हमने डिवाइड किया है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में। तो वन पेज है डिजाइनिंग के लिए, वन पेज है, तो कोडिंग के लिए भी वन फाइल होगा। ओनली यूजर को जो दिखेगा सेक्शंस अलग अलग वो यूजर फिल के, यस देयर इज डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन, बट एक्चुअली में देयर इज ओनली वन पेज, ठीक है, एक ही पेज है। यस, इसके बाद टुडे वी विल कंप्लीट ऑटो पोस्ट बैक एंड पोस्ट बैक के बाद देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट दी वैलिडेशन कंट्रोल या तो फिर यूजर कंट्रोल हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑल कंट्रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो आपको याद रखना है। अभी तक हमने लिस्ट कंट्रोल्स किया, ठीक है, लिस्ट कंट्रोल्स कंप्लीट किया, LIS लिस्ट कंट्रोल्स कंप्लीट किया, रीच कंट्रोल्स वी हैव कंप्लीटेड टुडे, ठीक है। ये रीच कंट्रोल्स का लास्ट टाइम मल्टी व्यू ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद वैलिडेशन कंट्रोल्स या तो यूजर कंट्रोल्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको याद रखना है कि कौन से कंट्रोल्स है, एवरी कंट्रोल्स का प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर। नाउ मल्टी व्यू रिलेटेड है तो आई विल आस्क द क्वेश्चन के व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टी व्यू कंट्रोल हैव टू सेट, ओके, कौन सा प्रॉपर्टी सेट करना है मल्टी व्यू के लिए। तो क्या कौन सा प्रॉपर्टी था, एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी, ओके, यू हैव टू सेट एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी, ओके, एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी आपको सेट करना है। सी दिस इज योर फर्स्ट, हमने पूरा एक पेज डिजाइन किया था बट आउटपुट कैसे आ रहा है, this is the first section when we'll click on next button तो सेकंड सेक्शन डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज बटन, हमने बटन में कोडिंग किया था, ये नेक्स्ट व्यू पे जाना है तो क्लिक ऑन दिस बटन, तो ये बटन के क्लिक में वी हैव रिटन द कोड लाइक कि multi-view 1 dot active view index, active view index is the property, okay, active view index is the property। active view index जो है वो चेंज हो जाना चाहिए, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो active view index क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ओके। ये हमने किया ऐसे, ये थर्ड सेक्शन में हमने ये लिखा था, दिस इज मल्टी व्यू एग्जांपल, क्लिक ऑन बटन फॉर मूविंग टू नेक्स्ट व्यू, ओके। so when I will click on this button, तो ये बटन पे हमने क्या कोडिंग किया था कि when either will click on this button तो क्या होना चाहिए, मल्टी व्यू 1 जो है उसका एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी इक्वल्स टू 0, मतलब अगेन फर्स्ट सेक्शन में चला जाएगा,
तो आ गया फर्स्ट सेक्शन में। इसके बटन में हमने किया था कोडिंग की, जब इस पे क्लिक करेंगे तो सेकंड सेक्शन आना चाहिए। तो सेकंड सेक्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करने से हमने कोडिंग किया था कि थर्ड सेक्शन आना चाहिए, थर्ड सेक्शन। इस पे क्या था अगेन फर्स्ट, तो ये हो रहा है। ओके, तो दिस इज मल्टी व्यू कंट्रोल, है तो एक ही पेज, यू कैन सी दिस इज मल्टी व्यू एग्जांपल पेज, मल्टी व्यू एग्जांपल पेज, पेज तो एक ही है यहाँ पे, यू कैन सी हियर पेज का नेम तो एक ही दिखा रहा है। ओके, पेज चेंज नहीं हो रहा है, ओनली उसमें जो सेक्शन जो है the sections are changing. Why? Because of multi-view and view control. हमने एक multi-view control लिया and वो multi-view control में we have taken the different views. तो आपको जितना भी views create करना है तो you can create. Clear? Clear students? Multi-view control. Yes or no? Yes or no students? Okay. I hope समझ में आ रहा है सबको प्रोग्रामिंग। ओके जितना हो सके उतना मैं स्लोली जा रही हूँ, एवरी स्टेप्स। ठीक है, आई शो यू कैसे करना है, क्या करना है, कौन सा प्रॉपर्टी सेट करना है, जितना पॉसिबल उतना सब मैं आपको करवा रही हूँ। ओके, तो प्लीज आप लोग उसको याद रखो। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, तो ये एंड आई ऑलरेडी सेंड ऑल दी जो नोट्स था अब तक के रीच कंट्रोल से, वो मैंने गूगल क्लासरूम में सेंड कर दिया यस्टरडे, तो यू कैन रिफर एंड यू कैन ट्राई एट होम। ठीक है, जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये नोट्स ऑलरेडी मैंने गूगल क्लासरूम में कल सेंड कर दिया था, रीच कंट्रोल्स तक मैंने सेंड कर दिया है। ठीक है, तो यू कैन प्रैक्टिस एट योर होम। लिस्ट कंट्रोल्स भी दे दिया, रीच कंट्रोल्स भी दे दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट बैक। ओके, पोस्ट बैक दिस इज थियरी टॉपिक है एंड उसका प्रॉपर्टी हमको सेट करना है। एवरी नहीं, some of the controls have post back property है। तो what is post back property and when to set this property, let's see. Okay, wait. Okay, auto post back. Okay, auto post back, post back और auto post back। ठीक है, चलो what is auto post back, what is auto post back? तो auto post back is the mechanism, please student उसको अच्छे से समझो। ठीक है, अगर समझ पाए तो यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, अगर नहीं समझ में आया तो आप वो प्रॉपर्टी नहीं यूज कर पाओगे। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑटो पोस्ट बैक। if your concept is clear then you can use this property. Auto post back is the mechanism by which the page will be posted back to the server automatically. Okay, auto post back is the mechanism by which the page will be posted back to the server. Okay, the page will be posted back to the server automatically. Okay, कैसे होगा automatically? based on some events. Okay, based on some events in the web controls. Clear? In some of the web controls, the property called auto post back, which if set to true, will send the request to the server when event happens in the control. Okay. What is the use of this property? कि ये जो property अगर हम लोग set करें तो जो हमारा page जो है, the page is post back हो जाएगा, किसको चला जाएगा, अगेन सर्वर के पास चला जाएगा। ओके, अगेन सर्वर के पास ये पेज चला जाएगा। कभी हमको ऐसी जरूरत कभी पड़ती है व्हेन वी हैव टू सेट दिस प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ड्रॉप डाउन बॉक्स, ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स जो हमने कंट्रोल किया, ओके, और कॉम्बो बॉक्स, यू कैन से आल्सो कॉम्बो बॉक्स। वेब कंट्रोल हैज द प्रॉपर्टी ऑटो पोस्ट बैक। if we set the property true, अगर हम ये property auto post back is a property, okay student, this is a property of the control. Okay, तो combo box करके एक control है that we have already covered in the previous lectures. तो drop down you can say और combo box, उसका ये property है when whenever user select different values. Okay, अगर हमने ये property set किया है, okay, तो whenever user select a different value in the combo box, an event will be fired in the server. Okay, मतलब every time जो हम सिलेक्ट करेंगे कॉम्बो बॉक्स में से वो किसके पास जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। ओके, सर्वर उसको चेक करेगा। ओके, सर्वर चेक करेगा, देन पेज हमको क्या करता है, रिटर्न करता है। ओके, कोई कंट्रोल्स जो है, सम कंट्रोल्स नीड्स टू सेट दिस प्रॉपर्टी, हर एक कंट्रोल को सेट करने की जरूरत नहीं है। कॉम्बो बॉक्स हो गया, देन मोस्टली हम लोग कॉम्बो बॉक्स में ही करते हैं। ठीक है, एंड चेक बॉक्स में हम लोग करते हैं
कि जहाँ पे वी हैव टू चेक दी वैल्यू विद दी सर्वर के साथ हमको चेक करवाना है, ठीक है। तो जो कंट्रोल्स जो है उसका वैल्यू सर्वर के पास एवरी टाइम वो सेंड करेगा व्हेन वी विल सेट दिस प्रॉपर्टी। व्हाई वी नीड टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू सर्वर इन दिस केस, व्हाई, क्यों क्यों हमको सेंड करना है, ओके। तो कंसीडर दिस सिनेरियो, एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल्स मैंने रखा है सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, ओके। The web page is used, for example हमने web page बनाया, it is used for entering user information, okay। Suppose we have made one form, okay। उसमें हमने क्या किया है, यूजर का जो इंफॉर्मेशन वो एंटर करवा रहे हैं यूजर्स, ओके। द पेज जो हमने वेब पेज बनाया है कंटेंट टू कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल्स, एक स्टेट है एंड एक टाउन है, ओके। तो इमेजिन करो कि हमने एक वेब फॉर्म बनाया है, वो वेब फॉर्म में दो कॉम्बो बॉक्स है, मतलब दो हमने लिया है ड्रॉप डाउन, कॉम्बो बॉक्स मतलब ड्रॉप डाउन, एक स्टेट के लिए एक टाउन के लिए, ओके। व्हेन यूजर सिलेक्ट द स्टेट, जब यूजर स्टेट सिलेक्ट करेगा ना, तो अप्रोप्रिएट टाउन शुड बी फिल्ड इन द टाउन कॉम्बो बॉक्स व्हिच इज लोडेड फ्रॉम द डेटाबेस। वो कहां से आएगा, फ्रॉम द डेटाबेस में से। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये जब कॉम्बो बॉक्स बताया था तब मैंने करने के लिए आपको बोला था, ये विदाउट डेटाबेस भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो व्हेन यूजर, आप बोलोगे यूजर को सिलेक्ट एनी स्टेट, तो अगर यूजर सिलेक्ट करा है महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र रिलेटेड जितने भी टाउन्स, जितने भी सिटीज है महाराष्ट्र स्टेट में, वो स्टेट सिटीज जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए सेकंड कॉम्बो बॉक्स में, ओके। तो एट द टाइम क्या होगा, जब आप महाराष्ट्र सिलेक्ट करते हो तो वो पेज किसके पास जाता है, सर्वर के पास जाता है। सर्वर विल चेक कि महाराष्ट्र रिलेटेड कोडिंग में क्या किया होगा, कौन से महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट किया है, तो कौन से सिटीज डिस्प्ले होना चाहिए, तो वो सर्वर के पास चेक करने के लिए जाएगा। देन सर्वर विल रिटेन दी रिस्पॉन्स। अगर गुजरात सेट किया हम लोगों ने कॉम्बो बॉक्स में, स्टेट में हमने गुजरात सिलेक्ट किया, तो अगेन वो पेज किसके पास जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। सर्वर क्या चेक करेगा कि गुजरात सिलेक्ट किया है, तो गुजरात सिलेक्ट किया तो उसके रिलेटेड कितना सिटीज है, उसमें कितने सिटीज है वो चेक करेगा एंड वो रिटर्न करेगा टू द यूजर को अगेन वेब पेज में। तो ऐसे टाइम पे, ओके, ऐसे टाइम पे कि जब हम वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, ओके, कुछ चेक करवाना है हमको, एट दैट टाइम हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी। अब रेडियो बटन, तो रेडियो बटन में हमने ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा था, जस्ट मेल फीमेल, मेल पे सिलेक्ट किया, ओके, फीमेल पे सिलेक्ट किया, ओके, ओके। चेक बॉक्स, अगर चेक बॉक्स में आपने क्या जस्ट आपको रिटर्न करवाना है सिलेक्टेड, तो सर्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ओके। जब हम ऐसा कुछ कोडिंग कर रहे हैं, व्हेन वी आर डूइंग द कोडिंग लाइक दिस, ओके, कि सिलेक्ट करने से कुछ ऐसा होना चाहिए तो कुछ वैसा होना चाहिए, मतलब कुछ प्रोसेसिंग आप करवा रहे हो जो सर्वर को चेक करना पड़ रहा है, एट दैट टाइम यू कैन सेट दिस प्रॉपर्टी, ओके। तो फॉर अचीविंग दिस रिक्वायरमेंट वी कैन सेट द ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बो बॉक्स टू ट्रू। आपको वो प्रॉपर्टी क्या सेट करना है, ट्रू सेट करना है, ओके। वी विल डू सम, इसका एक स्मॉल एग्जांपल हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। मुझे याद करवाओ, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी ऑटो पोस्ट बैक का, ठीक है, ओके। If we do that, we can handle the event in server side and write code to populate the town combo box with the values from the database, okay। डेटाबेस, अगर डेटाबेस से भी हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, वी आर आल्सो डीलिंग विद द डेटाबेस। हमारा डेटाबेस में हमने सिटीज एंटर करवाए एंड स्टेट एंटर करवाए, एक स्टेट का टेबल, एक सिटी का टेबल है, ओके। तो हम लोग स्टेट के टेबल में से स्टेट डिस्प्ले हो रहा है स्टेट कॉम्बो बॉक्स में। जब यूजर सिलेक्ट करेगा कोई भी स्टेट, तो उसके रिलेटेड सिटी टेबल डिस्प्ले होना चाहिए फ्रॉम द सिटी के डेटाबेस में से, ओके। तो एट दैट टाइम भी हमको क्या करना है, दिस प्रॉपर्टी सेट करना है, ओके। Again the second, yes student please rejoin, okay, rejoin for 5 minutes, ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं आज, ओके, यस। फॉर वन, ये रीजन के लिए हम लोग ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। अनदर एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, कंसीडर द लॉगिन पेज, ओके, कंसीडर द लॉगिन पेज व्हिच कंटेन्स, एक लॉगिन पेज लिया है, उसमें यूजर आईडी है, ओके, यूजर हैव टू एंटर यूजर आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड फील्ड, ओके। बट जो नेम के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, द टेक्स्ट बॉक्स इज नॉट एडिटेबल, मतलब यूजर कैन नॉट एडिट दैट टेक्स्ट बॉक्स। जो यूजर आईडी सिलेक्ट करेगा ना, सॉरी, जो यूजर आईडी वो एंटर करेगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली नेम डिस्प्ले होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली नेम डिस्प्ले होना चाहिए। कभी कभी आप करते हो ना, आप अपना आईडी डालते हो तो ऑटोमेटिकली आपका नेम वगैरह नीचे, एड्रेस वगैरह, फोन नंबर, ऑलरेडी आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाता है वेब पेज पे, ओके। तो वो क्यों होता है, तो हम लोग ऐसे